Welcome to Camleon classes. Hello everyone. Today I am going to explain you about the disease known as giardiasis. In this PPT we would study about giardia, its habitat, morphology, life cycle, virulence factors, clinical features, giardia infection, incubation period, epidemiology, prognosis, diagnostic methods, treatment and prevention of the disease. To introduce with giardiasis is also known as beaver fever caused by Giardia lamblia, which is also known as Giardia intestinalis or Giardia duodenalis. ये बेसिकली एक कॉमन इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होती है दैन एडल्ट्स. यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 केसेस ईयरली रिपोर्ट होते हैं एंड अप्रॉक्स 7% ऑफ पॉपुलेशन आर एसिम्टोमेटिक कैरियर्स ऑफ द डिजीज़. So let's now talk about the classification of Giardia. It belongs to kingdom Protista, subkingdom Protozoa, phylum Sarcomastigophora, class Kinetoplastidae, order Diplomonadida. So Giardia is basically a parasite which belong to Giardia family. It inhabits the intestinal tract of vertebrates, affects various animals and human beings. So first is Giardia intestinalis, which affects humans and some of the rodents. Second is Giardia muris, which affects mammals. Third, Giardia agilis, which affects amphibians. Fourth, Giardia stachy, which affects birds. Fifth, Giardia aridae, which affects rodents. So next slide shows the picture of Giardia lamblia. Giardia intestinalis is a flagellated protist. It was discovered by Anton von Leeuwenhoek when he examined his own stools. Initially, इसका नाम Sarcomonas intestinalis था, which was given by Lamble, and later इसका नाम रखा गया Giardia lamblia by Stiles in honor of Professor A. Giard of Paris and Dr. F. Lamble of Prague. So basically Giardia is of two genotypes based on place of origin, that is genotype A1 and A2 of Polish origin and genotype B of Belgium origin. So these genotypes are not associated with any kind of virulence. So now let's talk about the habitat. This parasite inhabits the small intestine of man. As you can see in the picture shown below, the organism is attaching to the intestinal mucosal wall by ventral suckers. So now let's talk about the morphology of Giardia. There are two morphological forms. First one is trophozoite form, other one is cyst form. So trophozoites are basically pear-shaped disc or teardrop-shaped structure जो एंटीरियर एंड पे तो ब्रॉड होते हैं और राउंड होते हैं और पोस्टीरियर एंड पे टेपरिंग होते हैं. इनकी लेंथ है 10 to 20 माइक्रोमीटर एंड ब्रेथ 5 to 15 माइक्रोमीटर. इसका डोर्सल सरफेस जो है वो कन्वेक्स होता है एंड वेंट्रल सरफेस कनकेव होता है. जब हम लेटरल व्यू से देखते हैं तो इसकी शेप सिकल जैसी लगती है. वेंट्रल सरफेस पे बाइलोब्ड एडहेसिव डिस्क होती है जो जिससे कि ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजल वॉल से अटैच कर पाए. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है बिकॉज टू मीडियन बॉडीज आर प्रेजेंट
2 exonyms and 4 pair of flagella. It has 2 nuclei with central charosome, which give it face-like appearance. 2 exostyles साइटोप्लाज्म के अक्रॉस डायगनली रन करते हैं और फ्लैजिला की जो है वो फॉलिंग लीफ टाइप मोटिलिटी है. सो नेक्स्ट इज सिस्ट फॉर्म. ये इन्फेक्टिव स्टेज है पैरासाइट की. ये ओवल और एलिप्सॉइडल होती है शेप में, जिसकी लेंथ है 8 to 12 माइक्रोमीटर और ब्रेड्थ है 7 to 10 माइक्रोमीटर. सिस्ट सराउंडेड होती है थिक सिस्ट वॉल से. इसमें ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है जो सिस्ट वॉल से सेपरेट होता है बाय अ क्लियर स्पेस. सिस्ट में 4 न्यूक्लियाई होते हैं जो पेयर्स में रहते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सोस्टाइल एंड मीडियन बॉडीज. When we stain it from iodine, the cyst turns into brown color. So the next slide is showing the picture of the trophozoite form. You can see the trophozoites attaching to the intestinal mucosa. And another picture showing the ventral surface of trophozoite and the side view of a trophozoite. The next slide shows the microscopic form of the trophozoite and microscopic view of the cyst form. And here the process of encystation and excistation is also explained. Trophozoite, by the process of mitosis, forms a cyst, or trophozoite or the 2 trophozoite cells fuse together to form a cyst. This process is known as encystation. In simple words, trophozoite से cyst बन रहा है तो encystation, और cyst से अगर trophozoite form वापस बन रही है तो excistation. So let's now move on to our next slide describing about the life cycle of the disease. So as you can see, एक पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन, उसके स्टूल सैंपल से सिस्ट बाहर आई. ठीक है. सिस्ट फॉर्म और ट्रोफोजॉइट फॉर्म, दे आर पास्ड इन द स्टूल बट दे डू नॉट सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट. ओके. सो ये फिर क्या होता है, एट द नेक्स्ट स्टेप कंटामिनेशन हो जाती है फूड की, वाटर की, या फिर बाय हैंड्स जिनमें इन्फेक्टिव सिस्ट प्रेजेंट हो. तो ये सिस्ट बाद में थ्रू दिस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फिर से एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर चली जाती है. सो दिस साइकिल गोज ऑन. स्टमक में एग्जिस्टेशन होती है, 2 ट्रोफोजॉइट बनते हैं, फिर ट्रोफोजॉइट मल्टीप्लाई होते हैं बाय बाइनरी फिजन, और ये एडहेयर करते हैं एंटेरोसाइट से बाय वेंट्रल सकर्स. कुछ ट्रोफोजॉइट्स तो लार्ज इंटेस्टाइन से पास हो जाते हैं और एनसिस्टेशन होता है, यानी कि वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो बाद में स्टूल की फॉर्म में मीन्स की स्टूल में पास हो जाते हैं सिस्ट. सो हेयर बिलो it is shown that this is cyst, then converted into trophozoite form. Then these trophozoites fuse together to form a single trophozoite and then finally converted into cyst again. So basically cyst is the infective stage of the parasite. Cysts are resistant forms and are responsible for ट्रांसमिशन ऑफ giardiasis. सिस्ट और ट्रोफोजॉइट्स दोनों मिलते हैं फीसिस में. जब हम डायग्नोसिस कराते हैं ना, तब सिस्ट जो होती है वो हार्ड होती है और वो बहुत महीनों तक कोल्ड वाटर में सरवाइव कर सकती है. इन्फेक्शन जब होता है जब हम सिस्ट को इंजेस्ट कर लें बाय कंटामिनेटेड वाटर, फूड और बाय फीकल ओरल रूट. स्मॉल इंटेस्टाइन में
एग्जिस्टेशन होता है जिसमें ट्रोफोजोइट रिलीज होते हैं, यानी कि एक सिस्ट 2 ट्रोफोजोइट बनाती है। फिर ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी फिजन से। ओके, कहाँ पे? इन द ल्यूमन ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल बोवल, जहाँ पे वो म्यूकोजल वॉल से अटैच कर पाए बाय वेंट्रल सकिंग डिस्क। आफ्टर दैट एनसिस्टेशन अकर्स एंड पैरासाइट मूव टुवर्ड्स द कोलोन। सिस्ट स्टेज जो है ये मोस्ट कॉमनली नॉन डायरियल फीसेस में होती है, क्योंकि सिस्ट इन्फेक्शियस होती है जब ये स्टूल में पास होती है, और उसके बाद पर्सन से पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है इनका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द virulence factors of this disease. So first is cystin rich surface protein, that is CRP136. ये एक पोटेंशियल टॉक्सिन है, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता। सेकेंड इज जियार्डिया लैम्बलिया। जब जीजेनम वॉल से अटैच करता है तो एंटीजन का अपटेक जो है वो बढ़ जाता है इंटेस्टाइन से, जिससे कि हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो इन दिस केस जो मास्ट सेल्स आती है वो थोड़ा देर से आती हैं, जिससे कि मैक्रोफाज भी अपना काम ना कर पाए। फोर्थ इज माल एब्जॉर्प्शन ऑफ लीवोथायरॉक्सिन विच लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। फिफ्थ है surface antigenic variation. So basically what is surface antigen? So basically it is a process जिसमें कि जो पैरासाइट होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस जो भी हमें अफेक्ट करता है, वो अपने सरफेस पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसका इम्यून सिस्टम जो है उनको मतलब कैच ना करे, उनको आने दे। ठीक है। सो सिक्स्थ इज वेरिएंट स्पेसिफिक सरफेस प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स हैं जो मॉडिफाई हो गए सरफेस प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, पैरासाइट को मदद करते हैं जिससे कि वो प्रोटीएज रेजिस्टेंट हो। जो प्रोटीएज स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो ये आसानी से इंटेस्टाइनल म्यूकोजल वॉल पे अटैच हो जाता है। लास्ट इज हाइपोगामा ग्लोब्यूलिनीमिया। ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जिसमें जिसमें गामा ग्लोबुलिन्स ब्लड में नहीं बन पाते हैं ज़्यादा, जिससे कि एंटीबॉडी काउंट जो है कम हो जाता है और वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जियार्डिया इन्फेक्शन के बार बार होने से ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस डिजीज़. Its incubation period is between 1 to 3 weeks. Majority of infection are asymptomatic, and 40 to 80% infected children develop symptoms. Symptoms are diarrhea, loose or watery stool, foul smelling stool, stomach cramps, upset stomach, weight loss, dehydration. जियार्डिया इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी। कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन, वेट लॉस या फिर डिलेड माइलस्टोन्स। सो नाउ वी टॉक अबाउट द एक्यूट जियार्डिया इन्फेक्शन एंड क्रोनिक जियार्डिया इन्फेक्शन. So acute is it manifests in 7 to 10 days, lasts for 2 to 6 weeks. Its symptoms are severe diarrhea, abdominal cramps, bloating, flatulence, nausea and vomiting. And whereas chronic, it stays for a longer time. It is a more severe condition. It lasts for 2 months to years. Its symptoms are increased gas, dehydration, burping, low stools, slowed growth.
Some of the host examples of this infection are humans, cat, dogs, cows, lambs, beavers, and deer. So now you came to know that GRDSS is known as beaver fever because it is also caused by beaver. So now we talk about the incubation period and duration. Incubation period is symptoms generally begin 2 weeks after being infected. ड्यूरेशन हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स 2 से 6 हफ्ते तक रह सकते हैं. नाउ एपिडेमियोलॉजी. मैन, डॉग, बीवर और बाकी एनिमल्स ये रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करते हैं. इसका सोर्स है वाटर कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीसेस जिसमें जियार्डिया की सिस्ट प्रेजेंट होती हैं. ट्रांसमिशन इज़ बाय फीको ओरल रूट एंड इन्फेक्टिव डोजेस कम से कम 10 सिस्ट डिजीज़ कॉज कर सकती है. सो प्रोग्नोसिस इज़ बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो उनमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ है. बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं. GRDSS इज़ नॉट एसोशिएटेड विद मॉर्टैलिटी, मतलब कि GRDSS से कोई मरता नहीं है एक्सेप्ट इन रेयर केसेस जिसमें एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाए. मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स में या फिर जो वो बच्चे जिनको खाना सही से नहीं मिलता, माल नरिश्ड हैं, उनमें. So now let's talk about the laboratory diagnosis of the disease. First is parasitic diagnosis, यानी कि हम पैरासाइट को कैसे पता लगा रहे हैं किस स्पेसिमेन में. स्पेसिमेन इज कैन बी स्टूल, duodenal aspirates, duodenal और jejunal biopsy. So method of examination. So first one is stool microscopy. इसमें जो है फ्रेश वाटरी स्टूल में हम सिस्ट और ट्रोफोजोइड्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. पहला बाय डायरेक्ट वेट माउंट एग्जामिनेशन. इसमें क्या होता है, हम सेलाइन माउंट करते हैं जिसमें हमें पता मतलब दिखता है फॉलिंग लीफ टाइप मोटिलिटी लिक्विड स्टूल्स में, और आयोडीन माउंट जो है वो दिखाता है दोनों ट्रोफोजोइड्स में और सिस्ट में. एंड अप टू 5 to 6 सैम्पल्स मे बी रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द पैरासाइट. सेकेंड इज एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन्ड स्टूल स्मीयर, that is by trichome or iron hematoxylin stain. It is used to demonstrate the trophozoites in stool. Third one is examination after stool concentration. इसमें यूज़ होता है formalin ethyl acetate and zinc sulfate concentration, and various methods are used. So next is stool antigen detection by ELISA and immunofluorescence or by immunochromatographic card test. Next is about duodenal contents examination. First is duodenal fluid. इसमें बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग टेस्ट या फिर एंटेरो टेस्ट. इसमें क्या होता है, एक जेलेटिन कैप्सूल जो कि एक नायलॉन स्ट्रिंग से अटैच्ड है, उसके नीचे एक वेट अटैच होता है. तो क्या करते हैं, पेशेंट इस कैप्सूल को इंजेस्ट करता है और 4 से 6 घंटे तक रहने देता है अपने अंदर. फिर हम कैप्सूल को रिमूव कर देते हैं और ड्यूडेनल फ्लूइड जो हमें मिलता है उसको हम एग्जामिन करते हैं. नेक्स्ट इज़ ड्यूडेनल सैम्पलिंग. ड्यूडेनल बायोप्सी या फिर एस्पिरेट्स जो हमें मिलते हैं ईसोफैगो गैस्ट्रो एंडोस्कोपी से. ये हम कैवीज़ कैप्सूल या फिर र्यूबिन्स
ट्यूब से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर ये जो स्पेसिमेन है इसको हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। यूजेस हैं इनके कि बहुत मोस्ट सेंसिटिव केस में यूज़ होता है, और ये बाकी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। So this picture is showing that endoscope is inserted through the mouth into the duodenum. फिर एक डाई डालते हैं कैथेटर में जो जाता है पैनक्रियाटिक और बाइलरी डक्ट्स में। तो उस डाई से क्या होता है, बेसिकली वो स्टेन कर देती है जिससे कि हमें माइक्रोस्कोपी में क्लियर इमेज दिखे पैरासाइट की। Other diagnostic methods are serodiagnosis, in which IIF and ELISA for demonstration of serum antibodies. Other is molecular methods, that is by DNA probes and PCR. Differential diagnosis, that is giardiasis, is differentiated from bacterial diarrhea, amoebic diarrhea, salmonellosis, and viral gastroenteritis. So basically its treatment is कि asymptomatic persons को हम जनरली जो एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम ट्रीट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हाउस होल्ड ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करते हैं कि वो किसी और को इन्फेक्शन ना फैलाए, और एडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है बाय एंटीबायोटिक्स, by oral antibiotics. There are several drugs which are prescribed below. First is metronidazole, second is tinidazole. These both are nitroimidazole derivatives. Third is quinacridine. Fourth is furazolidone. Okay. So next is basically appropriate fluid and electrolyte management is very critical, क्योंकि ये बेसिकली ये डायरियल डिजीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत डिहाइड्रेशन होगा। तो उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बॉडी में प्रॉपर कंटेंट रहे, मतलब प्रॉपर एप्रोप्रिएट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट हो। So next is prevention. Practice good hygiene. Wash your hands properly with soap and water after using the toilet, before eating food and after eating food, after every diaper change, in case of infants. And don't go to the swimming pool if you are experiencing diarrhea. Avoid food that might be contaminated. Wash and peel all the raw vegetables and fruits before eating. Use uncontaminated water to wash all the food stuff that is to be eaten raw. Avoid eating uncooked foods when traveling in countries with minimal water treatment and sanitation systems. Hope you all enjoyed the video and you have now learned something about the giardiasis.